Hello and welcome everybody to the topic on major domains of Earth. Now in this topic, it holds importance in terms of general knowledge. From this topic we will get one question in the examination. The question will be simple, but revision is required. Let us start. As you see in this first page, the diagram, it is shown that what are the domains of Earth. You can see two things here. First is the water part in the form of oceans and sea, and the land part in the forms of continents. And the third domain, which we cannot see here, is the air, which forms the atmosphere. Let us begin our discussion. Now we know that we have a unique existence. The planet Earth is a unique planet where there is an existence of life is found. Human beings can live here because the life sustaining elements, which are land, water and air, are present on the earth. हम जानते हैं कि अर्थ में लाइफ पॉसिबल हुई है बिकॉज ऑफ थ्री फैक्टर्स. पहला लैंड, दूसरा वाटर एंड तीसरा एयर. एंड ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ. और बेस्ड ऑन दीज थ्री कंपोनेंट्स और दीज थ्री डोमेन्स, हमने इनको थोड़ा सा डिवीजन किया है, उसी के बारे में आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज अ कॉम्प्लेक्स जोन in which three main components of environment are present. Environment के तीन important component यहाँ पर present है. पहला lithosphere, also the land part, atmosphere, the air part, and hydrosphere, the water part. So because of these three components, the life is possible, and it is very important to understand them and to study them from the basics. Now first of all, as we proceed, let us understand the origin of the term lithosphere, atmosphere and hydrosphere. As per the Greek language they have originated. इनका जो origin हुआ इन words का Greek language के basis पर हुआ. Greek language में लिथोस का मतलब stone होता है, एटमॉस का मतलब वेपर होता है. अच्छा, लिथोस का मतलब स्टोन होता है, तो जितना भी लैंड पार्ट, जो स्टोन पार्ट जो है उसको हमने लिथोस्फीयर कहा. एटमॉस का मतलब वेपर होता है, तो जितना भी एयर वाला पार्ट है उसे हमने एटमॉस्फियर कहा. और हुडोर का मीन्स वाटर होता है, तो जितना भी वाटर पार्ट है उसे हमने हाइड्रोस्फीयर कहा. और इन तीनों को हम मिला दें तो बन जाती है लाइफ, जिसे ग्रीक में हमने बायोस कहा और इसका नाम हमने बायोस्फीयर रखा. नाउ लुकिंग एट दीज थ्री domains one by one, the solid portion of the earth on which we live, जो solid part है जिस पे हम रहते हैं, that is called the lithosphere. उसे lithosphere कहेंगे. The gaseous layers that surround the earth is the atmosphere. वो layer जो हमारे earth को जिसने surround किया हुआ है, the layer of gas, that is atmosphere. What are the gases? Where oxygen gas, nitrogen gas, carbon dioxide and other gases are found, like helium है, neon है, सारे gases इसमें हमें मिलते हैं. Atmosphere. And the next is the water, which covers a very big area of the earth's surface, which is the 2/3 area of earth's surface, and this area is called hydrosphere. Hydrosphere comprises water in all the forms. Water अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है. आइस के फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट है, वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है. So all of it will be the part of hydrosphere. And atmosphere, lithosphere and hydrosphere, because of these three spheres
life is possible on earth, we can say all these three together form the biosphere. It is the narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of life. और जहाँ पर ये तीनों स्पेयर्स हमारे मिल जाएंगे वहाँ पर हमें लाइफ मिलेगी एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ मिलेगी. यहाँ पर बर्ड्स हैं, आप देखिए पिक्चर में, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, तीनों एक हो गए हैं. तो यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ लाइफ हमें दिख रही है. हमें एक्वेटिक लाइफ दिख रही है, हमें बर्ड्स दिख रहे हैं, एरियल लाइफ बोलेंगे उसे, हमें प्लांट लाइफ, हमें लैंड में भी अलग अलग लाइफ के फॉर्म्स आप देख सकते हैं. एनिमल्स सारे दिखेंगे आपको. यहाँ पर ये देखो, ये टाइगर है, ये छुप के डियर्स को देख रहा है, अपना टारगेट बनाना चाह रहा है या अटैक करना चाह रहा है इनसे. तो ये इस तरह के आपको लाइफ मिलेगी जहाँ पर ये तीनों हमारे लैंड के फॉर्म्स, लैंड, एयर और वाटर जहाँ पर मिल जाएंगे वहाँ पे बायोस्फीयर का फॉर्मेशन मिलेगा जहाँ पर हमें लाइफ फॉर्म दिखाई देगी. नाउ लेट अस डिस्कस द थ्री डोमेन्स वन बाय वन. द फर्स्ट इज लिथोस्फीयर. एज वी डिस्कस्ड, द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. जो अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है उसे हम लिथोस्फीयर कहेंगे. इट कंप्राइजेज, ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. पहला, रॉक ऑफ अर्थ्स क्रस्ट. तो अर्थ की क्रस्ट के ऊपर जितने भी रॉक्स हैं वो सारे लिथोस्फीयर में आ जाएंगे. प्लस थिन लेयर ऑफ सॉइल. सॉइल की जो पतली वाली जो लेयर है वो भी इस लिथोस्फीयर में आ जाएगी. एंड दिस थिन लेयर ऑफ सॉइल, इट एक्चुअली कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन्स ऑर्गेनिज्म. इसी सॉइल के अंदर कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिस न्यूट्रिएंट से हम एग्रीकल्चर या फार्मिंग करते हैं. इसी सॉइल के अंदर कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हमें मिलते हैं. सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर. अब अर्थ की जो लिथोस्फीयर है, अर्थ की जो सरफेस है, उसके भी दो और डिवीजन हमने किए हुए हैं. द टू डिविजन्स ऑफ अर्थ सरफेस. पहला, कॉन्टिनेंट्स, which are the large land masses. The five, and next comes the ocean basins. Ocean basin मतलब क्या हुआ? Ocean basin मतलब ये हुआ कि जब आप ओशन के अंदर जाएंगे तो वहां पर भी नीचे जब आप उतरते जाएंगे, ओशन के बहुत नीचे जब आप चले जाएंगे तो वहां पे भी आपको एक लैंड सरफेस दिखाई देगा, वहां पर भी एक सरफेस मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द ओशन. आप ओशन के नीचे चले जाओ, ओशन के नीचे भी आपको एक सरफेस मिलेगी और इस सरफेस को हम क्या कहते हैं? इस सरफेस को हम ओशन बेसिन कहते हैं. ओशन बेसिन्स, द ह्यूज वाटर बॉडीज, उनके नीचे का जो लैंड पार्ट है. ऑल द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या दुनिया के सारे ओशंस आपस में कनेक्टेड है? द आंसर इज यस. द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर. और क्योंकि जितने भी वर्ल्ड के ओशंस हैं ये सारे कनेक्टेड हैं, इसीलिए जो सी वाटर का जो लेवल है वो हर जगह सेम रहता है. एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज जीरो. और किसी भी लैंड की जो एलिवेशन है, एलिवेशन मतलब उसकी जो ऊंचाई है, उसका जो उठाव है, वो सी के लेवल से ही हम मेजर करते हैं. और सी लेवल को हम जीरो लेवल पर मानते हैं, मतलब स्टार्टिंग लेवल पर मानते हैं. टॉकिंग अबाउट द लिथोस्फीयर, द हाईएस्ट mountain peak is Mount Everest. It is 8,848 meters above the sea level. Nepal में located. The greatest depth is 11,022 meters. It is recorded at Mariana Trench in Pacific Ocean. तो highest point माउंट एवरेस्ट है और लोएस्ट पॉइंट, द डेप्थ जो सबसे ज़्यादा है वो 11,022 मीटर्स मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में पाई जाती है. एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा ऑफ इंडिया was the first men to climb the highest mountain peak Mount Everest on the planet Earth on 29th May 1953. तो इस सेंटेंस में कई सारे क्वेश्चन इन्होंने दे दिए. कि सबसे पहला तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है उस पर कौन से दो पर्सन थे? एडमंड हिलेरी थे, तेंजिंग नॉर्गे शेरपा थे. ये दोनों कौन सी कंट्री के थे? ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये एक न्यूजीलैंड और शेरपा इंडिया के थे. कब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था? 29 मई 1953 को किया था.
और इसके बाद जापान की वुमेन वाज द फर्स्ट वुमेन, जंको ताबी was the first woman to reach the summit on 16th May 1975. अभी तक इन्होंने ये क्वेश्चन तो पूछा है कि किसने चढ़ा थे, who was the first to climb, या किसने क्लाइम किया, ये तो पूछा है. अभी तक इन्होंने कंट्री नहीं पूछी है, तो पूछा जा सकता है. डेट भी इन्होंने नहीं पूछा है, तो पूछा जा सकता है. And the first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 was बछेंद्री पाल. तो फर्स्ट मैन जो थे जाने वाले, एडमंड हिलरी, तेंजिंग नॉर्गे शेरपा. फर्स्ट वुमेन जापान की जंको ताबी, और इंडिया की फर्स्ट वुमेन बछेंद्री पाल. नाउ स्टार्टिंग विद द लिथोस्फीयर, देयर आर दीज 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. Now after the major continents, let us move on to the first, Asia. Remember, Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of Earth. तो अर्थ में जितना भी total land mass है उसका 1/3 is Asia. The continent lies in the eastern hemisphere, and the Tropic of Cancer passes through this continent. Here you can see that it is the largest continent. Regarding the size, अगर एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, और साइज के बारे में बात करें तो सभी कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है. इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया. एशिया के बाद अफ्रीका आता है. So you can say that largest is Asia, second largest is Africa and smallest is Australia. अब इन सभी का ऑर्डर हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, चांसेस उसके बहुत ही कम है. और यहां पर आप देख सकते हैं दैट एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन्स. एशिया और यूरोप के बीच में जो डिवीजन है आप यहां देख सकते हैं, दिस इज द यूरल माउंटेन्स. अच्छा, यूरोप और एशिया को अगर हम दोनों को एक साथ जोड़ दें, यूरोप एंड एशिया, तो इन दोनों को एक साथ जोड़ के एक साथ हम कहते हैं यूरेशिया. यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया. दैट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया. नाउ यूरोप, एज यू सी द साइज वाइज यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया. यूरोप जो है एशिया से काफी छोटा है. एशिया के वेस्ट डायरेक्शन में ये प्रेजेंट है, और यूरोप के थ्रू आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू यूरोप. यूरोप से यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है यहां से आर्कटिक सर्कल पास करता है. एंड यूरोप के तीनों साइड में आपको वाटर मिलेगा. नॉर्थ में आर्कटिक ओशन मिलेगा, वेस्ट में अटलांटिक ओशन मिलेगा, साउथ में मेडिटेरेनियन सी मिलेगा. सो यूरोप इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द 3 साइड्स. नाउ आफ्टर एशिया एंड यूरोप, लेट्स मूव ऑन टू अफ्रीका. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. आफ्टर एशिया, this is the second largest continent. The equator, the Tropic of Cancer, you see that the equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, all these 3 latitudes, they pass through the continent, and you see that equator is passing through this continent almost centrally. बिल्कुल इसके सेंटर से होकर जा रहा है, बिल्कुल मिडिल ऑफ दिस कॉन्टिनेंट से होकर इक्वेटर निकल रहा है. A large part, इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है. So we say that a large part of equator, a large part of this continent lies in the northern hemisphere. इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा. तो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के मैक्सिमम जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. और जैसा हमने पहले डिस्कस किया
दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल द थ्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पास करते हैं. टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट अफ्रीका, द बिगेस्ट desert in the world, Sahara desert, it is present in the northern side of Africa. अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड में सहारा डेजर्ट प्रेजेंट है. और इनफैक्ट इसी सहारा डेजर्ट के प्रेजेंस होने की वजह से हम अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. डार्क कॉन्टिनेंट कहने का इसका रीजन ये है कि जब अर्लियर पीरियड में, हिस्टोरिकल पीरियड में, जब लोगों ने अफ्रीका को डिस्कवर करने की कोशिश की, जो लोग यूरोप से आए या जो लोग एशिया से आए, तो जब वो अफ्रीका पहुंचे तो उन्हें सहारा डेजर्ट मिलता था, जो कि इतना बड़ा था कि कभी ख़त्म ही नहीं होता था. तो लोगों को लगता था कि शायद इस लैंड में डेजर्ट के आगे कुछ है ही नहीं. हालांकि सहारा डेजर्ट क्रॉस होने के बाद अफ्रीकन लैंड मास, जो नॉर्मल एक वेजिटेशन वाला पार्ट है, वो आता था, लेकिन क्योंकि डेजर्ट इतना बड़ा था तो लोग उस डेजर्ट को क्रॉस कर ही नहीं पाते थे और उनको ऐसा लगता था कि शायद आगे पूरा अफ्रीका डेजर्ट ही है. और इस रीज़न से अफ्रीका की जो डिस्कवरी हुई वो काफ़ी बाद में हुई, इसीलिए इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है. लॉन्गेस्ट रिवर वर्ल्ड की नाइल रिवर, वो भी अफ्रीका में प्रेजेंट है, द लॉन्गेस्ट रिवर. मोरओवर एटलस माउंटेन्स, ये अफ्रीका में प्रेजेंट है. एंड अलॉन्ग विथ एटलस माउंटेन, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन्स, दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अफ्रीका, और वी कैन से द सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका. और एक और आप चीज पर ध्यान दीजिए, दैट द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हर तरफ से पानी से कवर्ड है. वेस्ट में इसके इंडियन ओशन है, सॉरी ईस्ट में इसके इंडियन ओशन है, वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी है, एंड इन द साउथ इट इज द पैसिफिक ओशन. सो फ्रॉम ऑल साइड्स इट इज कवर्ड बाय वाटर. नाउ अ इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जो है हर साइड से वाटर से कवर किया हुआ है, या तो ओशन से किया हुआ है या तो सी से किया हुआ है. सराउंडेड बाय वाटर, इन द नॉर्थ अफ्रीका इज सराउंडेड बाय मेडिटेरेनियन सी, इन द ईस्ट इट इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन, in the west it is surrounded by Atlantic Ocean, and in the south you can say it's a mix of Atlantic and Indian Ocean. So हर तरफ से ये पानी से कवर है. Now friends, after Europe, let us move on to the next continent, the third largest continent, North America. As the name suggests, North America, it completely lies in the northern hemisphere. Above equator it is present, and it is linked to South America, as you can see in the diagram, by a small strip of land here. When two large land masses are joined by a small strip of land, it is called isthmus, and this part here is called Isthmus of Panama. North America is in northern hemisphere as in western hemisphere. The mountains here are Appalachian Mountains and Rocky Mountains. Let us discuss a little bit about Isthmus of Panama. Look at this diagram. Here the upper part, this is North America, this is South America. Now you see that these two large land masses are connected by a small strip of land. तो जब दो बड़े लैंड मास एक छोटे से लैंड के स्ट्रिप से ज्वाइन रहेंगे, एक छोटे से लैंड के स्ट्रिप पार्ट से, जैसे आप यहाँ पर देखिए एक छोटी सी स्ट्रिप है जो इन दोनों को जोड़ रही है, तो इस तरह के लैंड मास को हम बोलेंगे इस्थमस.
और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला छोटा सा ये जो लैंड का पीस है, जो स्ट्रिप एक शेप का है, एक पट्टी के शेप का है, दिस इज कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, पर क्योंकि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है पूछा जा सकता है। तो डेफिनेशन इज गिवन हियर, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंड मासेस। तो दो बड़े लैंड मास को जोड़ने वाली एक छोटी सी पतली सी लैंड की पट्टी, इसे बोलेंगे इस्थमस। और इस्थमस के साथ ही दूसरा एक और आप टर्म देख लीजिए, स्ट्रेट। अभी स्ट्रेट को समझने के लिए पहले ये आप देखेंगे कि हमारे इंडिया और श्रीलंका, ये इंडिया और श्रीलंका का आप देखिए कि बीच में, वैसे तो बहुत ही क्लोज है इंडिया और श्रीलंका, लेकिन एक्चुअली कनेक्टेड नहीं है। बीच में जो है उसके वाटर बॉडी है। तो यहां पर स्ट्रेट का डेफिनेशन है, स्ट्रेट इज अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशन। तो स्ट्रेट क्या होता है? एक पतला सा रास्ता होता है जो दो बड़े वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है। दो बड़े सी को ज्वाइन कर सकता है, दो बड़े ओशंस को ज्वाइन कर सकता है, जैसा कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में प्रेजेंट है, उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। Now talking about the strait between India and Sri Lanka, it is the Park Strait. Park Strait स्ट्रेट पर्टिकुलरली एक ऐसी बॉडी हो गई, एक ऐसी वाटर बॉडी हो गई जो दो बड़े वाटर बॉडी को जोड़ रही है। जैसे श्रीलंका और इंडिया के बीच में आप देखेंगे तो ये छोटा सा यहाँ से पैसेज है वाटर का, जो कि ज्वाइन करता है इंडियन ओशन को और बे ऑफ बंगाल को। ऊपर बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला छोटा सा वाटर की बॉडी जो बीच में प्रेजेंट है, इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट जो कर रही है, उसे पार्क स्ट्रेट कहते हैं। तो स्ट्रेट क्या हो गया? स्ट्रेट इज अ वाटर बॉडी विच विल ज्वाइन टू bigger water body, they can connect to sea, they can connect to oceans, that is called a strait. Proceeding from North America, moving to South America. Now South America, first of all, is important because it has a presence of Amazon river. It is the largest river. Remember, it is the largest, not the longest. Longest is Nile, largest is Amazon river. Moreover, you see this, there's a line going on from the north. It starts from south and it goes to, starts from north, it goes to south. ये जो लाइन है ये एंडीज माउंटेन है, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। साउथ अमेरिका में ये प्रेजेंट है। मोर इंपॉर्टेंटली, लुक एट दिस, इट इज कंटिन्यूस माउंटेन। ये कहीं पर भी लाइन ब्रेक नहीं हो रही है, इसका मतलब ये माउंटेन जो है ये कंटिन्यूस माउंटेन की तरह ये काम करते हैं। साउथ अमेरिका। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया, द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, कंप्लीटली सराउंडेड बाय ओशंस एंड सीज एंड प्रेजेंट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया जो है साउदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है और चारों तरफ ये सी और ओशन से सराउंडेड है। नाउ सिंस इट इज सराउंडेड बाय ऑल द साइड्स बाय सी एंड ओशंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ आइलैंड कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट इज द अंटार्कटिका। इट कंप्लीटली लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। साउथ पोल इज प्रेजेंट इन अंटार्कटिका एंड बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर देयर इज नेग्लिजिबल ह्यूमन सेटलमेंट। वहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है, एंड द रीजन इज ऑब्वियस, क्योंकि वहां पर देयर इज नो वेजिटेशन, देयर इज नो प्रॉपर लाइट, देयर इज नो प्रॉपर टेम्परेचर, तो वहां पर कुछ भी पॉसिबल ना होने के कारण वहां पर कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। कंप्लीटली यहां पर स्नो, आइस की थिक शीट्स, आइस के लेयर्स ही लेयर्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और कई कंट्रीज ने अपने रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में बनाया हुआ है, इंक्लूडिंग इंडिया ने भी अपना एक रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में बनाया हुआ है। द नेम ऑफ दैट इज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री, दैट वी हैव रिटन फर्दर इन द शीट। तो इंडिया के दो रिसर्च स्टेशन हैं
एक है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। Now, after a discussion on the land mass, land part, the lithosphere, let us move on to the hydrosphere. The Earth is, we know, called a blue planet. More than 71% of the Earth is covered with water, and 29% is with land. Now, here this information is slightly diabolical. Reason is कि most of the books में 2/3 लिखा हुआ है कि 2/3 water है, कहीं 70% water लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट बुक का ही लाइन है जहाँ पर 71% बता हुआ है। तो जब क्या होता है कि जब कोई एक चीज़ के बारे में हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी जाए तो वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इसी का पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें 2/3 ऑफ वाटर बताया हुआ है। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक्स में 70% बताया हुआ है। ये भी टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है तो यहाँ 70, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए, नहीं पूछेंगे हमें कि कितना % वाटर है। अगर पूछे भी तो 2/3 हमारा एक स्टैंडर्ड आंसर रहता है, और 29% जो हमारा है वो है लैंड पार्ट। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। अभी हाइड्रोस्फीयर में वाटर जो है वो अलग अलग फॉर्म में है। एज रनिंग वाटर कहाँ कहाँ पर है, देखो ओशंस के फॉर्म में है, रिवर्स के फॉर्म में है, लेक्स के फॉर्म में है, आइस इन ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर होता है फ्रोजन रिवर ऑन माउंटेन टॉप्स। अंडरग्राउंड वाटर है, वाटर वेपर है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। दीज ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ वाटर, और ये सभी मिलाकर हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। नाउ टॉकिंग फर्दर अबाउट द हाइड्रोस्फीयर, close to 97% of the Earth's water is found in oceans, and we know the water present in ocean is too salty. The term for that is brackish. ओशन का जो वाटर है उसे ब्रैकिश बोलते हैं, उसमें है सम मेटल टेस्ट, बहुत ही सॉल्टी है, हम उसे अपने यूज में नहीं ला सकते। Other than this 97%, a large portion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers and under the ground. तो 97% के बाद जो 3% पानी बच रहा है वो या तो आइस के फॉर्म में है, या तो ग्लेशियर है, या तो अंडरग्राउंड पानी है, उसे भी हम यूज नहीं कर सकते। अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। तो ह्यूमंस के लिए बहुत ही कम परसेंटेज, जो यूजेबल जो वाटर है वो बहुत ही कम परसेंटेज में प्रेजेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर, ओशंस। These are the major part of hydrosphere, and all the oceans are interconnected. The ocean waters are always moving, and the three chief movements of ocean waters are the waves, the tides, and the ocean currents. There are 5 major oceans: the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean and Arctic Ocean. They are written in the order of their size. सबसे बड़ा है पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, देन इंडियन, देन सदर्न ओशन एंड देन आर्कटिक ओशन। इसको याद रखने के लिए आप एक टर्म याद रख सकते हैं, पैसा। P is the largest Pacific Ocean, then Atlantic Ocean, then Indian Ocean, then Southern Ocean, finally Arctic Ocean. This is the order of their size. Pacific Ocean is the largest, Arctic Ocean is the smallest. Now there are 3 terms here. First is the waves. Now waves are actually created by the movement of wind. तो waves जो हैं वो mostly wind movement की वजह से बनते हैं। Second is the tides. Tides are actually formed due to the gravitational pull of moon and sun. And the ocean currents. Ocean currents first of all are underwater. आपको ऊपर नहीं दिखाई देंगे। ओशन करंट्स आपको पानी के नीचे, आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो ऊपर का जो पानी, ऊपर की जो लेयर है थोड़ी गर्म मिलेगी पानी की, और नीचे थोड़ी ठंडी मिलेगी। तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हीट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर पर आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा है,
पोल्स पर टेम्परेचर कम होता है। अब ज्यादा और कम टेम्परेचर की आपस में जब मिक्सिंग होती है तो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरे ओशन में, और इसी हीट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कि अंडर वाटर उस पानी के अंदर एक काइंड ऑफ अट्रैक्शन बनता है, एक काइंड ऑफ खिंचाव बनता है, उसी को ओशन करेंट्स हम कहते हैं। सो दैट इज द अंडर वाटर करंट ड्यू टू द हीट डिस्ट्रीब्यूशन। Reason is difference in temperature. Now among the oceans, the first one, the Pacific Ocean, it is the largest ocean. It is spread over 1/3 of the earth. Mariana Trench is the deepest part of the earth. It lies in the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is almost circular in shape. Asia, Australia, North America and South America surround the Pacific Ocean. After Pacific Ocean comes the Atlantic Ocean. It is the second largest ocean in the world. It is a S-shaped ocean. It is covered by the North and South America on the western side and यूरोप एंड अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड। ये एस शेप का ओशन है। इसके वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है, यूरोप और अफ्रीका इसके ईस्टर्न, आप यहां पर देख सकते हैं। दिस इज द अटलांटिक ओशन। यू सी एक एस शेप यहां पर बन रहा है। इसके वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है एंड यूरोप एंड अफ्रीका है ऑन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न साइड। नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की जो कोस्ट लाइन है इट इज हाईली इंडेंटेड। इंडेंटेड का मतलब क्या हो गया, आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर डायग्राम में इंडेंटेड का मतलब क्या है, ये घुमावदार काफी है या काफी ज्यादा एज वाली है या काफी ज्यादा पॉइंटेड, इसके जो ओशन के पॉइंट्स हैं या जो इसकी जो कोस्ट लाइन है देखिए काफी पॉइंटेड है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम हियर, ये कैसे बहुत ज्यादा इसमें घुमाव है, बहुत ज्यादा है ना, टर्न्स हैं, और इसी टर्न की वजह से दिस इर्रेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्टलाइन, इसी की वजह से इट प्रोवाइड्स आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। तो शिप वगैरह के आने जाने, जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, तो इनके लिए ये बहुत एक अच्छी नेचुरल लोकेशन है। एंड फ्रॉम द व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशन। तो सबसे ज्यादा बिजी ओशन ये रहता है। क्यों ये रहता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा शिप्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, क्योंकि इसके ये जो एजेस ये जो निकले हुए हैं, ये जो इसके जो टीथ लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, इसकी वजह से ज़्यादा स्पेस मिलती है यहाँ पर। सबसे लंबी कोस्टलाइन भी इसको हम बोल सकते हैं, ओशंस में सबसे लंबी कोस्टलाइन इसकी रहेगी। वाई? बिकॉज ऑफ दिस इंडेंटेड स्ट्रक्चर, ये जो घुमावदार जो मुड़े मुड़े जो स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से काफ़ी स्पेस मिल जाता है। बिजनेस के लिए अच्छा है क्योंकि कई सारे शिप यहाँ से आ सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। सबसे ज़्यादा बिजी ओशन इसे बोला जाता है। Next is the Southern Ocean. It encircles the continent of Antarctica and extends northward to 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। आप देख सकते हैं सदर्न ओशन साउथ पोल पर प्रेजेंट है। अंटार्कटिका को इसने पूरी तरह कवर किया हुआ है और अंटार्कटिका से ये ऊपर बढ़ता है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड की तरफ। Next, finally, the Arctic Ocean. It is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. It is connected with the Pacific Ocean by a narrow stretch of shallow water known as Bering Strait. जैसा हमने बात किया कि स्ट्रेट क्या होता है, दो लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ने वाला स्मॉल वाटर पीस या स्मॉल स्ट्रेच ऑफ वाटर, एंड इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया।
आर्कटिक ओशन। देखेंगे जरा आर्कटिक ओशन। Here you can see the Arctic Ocean. This is the Arctic Ocean. तो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के आसपास ये हमें दिखाई देगा आर्कटिक ओशन। ये नॉर्थ अमेरिका के नॉर्दर्न साइड में आपको मिलेगा और यूरोप के नॉर्दर्न साइड में दिखाई देगा। To understand the Arctic Ocean, this is a clear vision. As you see here, Arctic Ocean surrounding the North Pole. North Pole आ गया मतलब आर्कटिक सर्कल के ऊपर हो गया। इधर नॉर्थ अमेरिका है, इधर एशिया है और ये यूरोप है। आर्कटिक ओशन एंड ऊपर आ रहा है पैसिफिक ओशन। देखिए यहां पर ये इतना जो पार्ट है, दिस इज द बेरिंग स्ट्रेट। ये दो लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है इतना स्ट्रिप ऑफ वाटर, तो ये बेरिंग स्ट्रेट है। नाउ आफ्टर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, let us move on to the third part, the atmosphere. We know that earth is surrounded by a layer of gas and that layer of gas is called atmosphere. जो layer of gas हमारे अर्थ के चारों तरफ प्रेजेंट है, इसे हम atmosphere कहते हैं। You can consider this as a thin blanket of air and it is very important for our planet. The reason it is important for our planet is पहला, it provides us with the air we breathe. पहला तो ये हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है and the other important gases are present. And also this layer used is helpful as a protection. It protects us from the harmful effect of sun rays. We know सन से आने वाले हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब करती है और अर्थ तक आने नहीं देती। So in another way it helps in the protection of our planet. The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. जो एटमॉस्फेयर की जो टोटल हाइट है या इसकी जो टोटल विड्थ है वो आप बोल सकते हैं दैट इज फ्रॉम ग्राउंड अप टू 1600 किलोमीटर्स तक फैली हुई। इवन जो 1600 किलोमीटर है उससे पूरी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, 99% कॉन्सेंट्रेशन इसका नियर टू अर्थ है, बट इट एक्सटेंड्स अप टू दैट डिस्टेंस। The atmosphere is divided into 5 layers. Now since it is extending up to 1600 kilometers, for our understanding हमने इसको 5 layers में divide कर दिया है based on its composition, the temperature and some other properties. And these layers are starting from earth surface. अर्थ की सरफेस पर, ये ग्राउंड से जहां पर हम सब बैठे हुए हैं वहां से ये स्टार्ट होती है। The layers are, the first is troposphere. This is the first layer. Next is stratosphere. Third is mesosphere. Next, fourth is thermosphere and finally exosphere. Exosphere के बाद space start हो जाता है। Now let us move on to the composition of atmosphere. The atmosphere is mainly composed of two gases, nitrogen and oxygen. These are the two major gases. ये दो major gases हैं, nitrogen and oxygen. However, इनके अलावा और भी कई gases present हैं. Water vapors हैं, hydrogen है, neon है, argon है. But nitrogen and oxygen, they make up about 99% of the clean and dry air. Nitrogen is 78%, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है. Oxygen is 21%. So that is why, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये मेजर गैसेस बन रही हैं. अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर आर 1%. कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है दैट इज 0.03%. ये हर टेक्स्ट बुक में लिया हुआ पर समहाउ आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया. अब क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक में इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं दी हुई है, इसका क्या
वॉल्यूम में ये हमें नहीं बताया हुआ है, परसेंटेज क्या है ये नहीं बताया हुआ, टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है, इसीलिए आज तक एग्जाम में नहीं आया। इवन तो कार्बन डाइऑक्साइड है और चांसेस कम है कि शायद आपको पूछ ले कि कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है ऑन द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि दिया हुआ है नंबर तो पूछा जा सकता है। अब जरा इनके देख लेते हैं यूजेस। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, गोज विदाउट सेइंग। भाई ऑक्सीजन की क्या जरूरत है, हमें तो सांस लेने के लिए जरूरत है, हर एक एक्टिविटी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करना है तो ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लांट्स की ब्रीदिंग करना है तो ऑक्सीजन की जरूरत है। नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट अमाउंट, इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द हीट रेडिएटेड by the earth and thereby keeping the planet warm. अब यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला ये है कि सन की जो रेज है, सनलाइट जो है, जब वो अर्थ पे आती है और जब वो रिफ्लेक्ट होती है अर्थ से, जब तो वो अर्थ से उसे जाने नहीं देती हैं, उसको वो ट्रैप कर लेती हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो उस हीट को बाहर नहीं निकलने देती हैं। उसके एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है अर्थ के, इस कार्बन डाइऑक्साइड का यही काम है कि सनलाइट आई अर्थ पर पड़ी, अब जब वो वापस जा रही है रिफ्लेक्ट होकर तो उसे वापस नहीं, उसे ट्रैप कर लेगी वो, और ऐसे हमारे प्लैनेट को वो गर्म रखती है। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, फोटोसिंथेसिस में भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए, नाइट्रोजन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो लिटिल क्वांटिटी है वो सनलाइट को जैसे ही अर्थ पे पड़ेगी उसे रेडिएट होते ही एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि हमारे प्लैनेट को थोड़ी बहुत गर्मी मिल सके, और प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज है। मूविंग फर्दर, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप। डेंसिटी का मतलब क्या है, उसकी जो हैवीनेस है एटमॉस्फेयर की, वो हाइट के साथ चेंज होगी। सी लेवल मतलब ग्राउंड लेवल पर, सी लेवल से हम स्टार्टिंग मानते हैं, तो ग्राउंड पर इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा हैवी होंगे। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओ, जैसे जैसे आप माउंटेन की तरफ जाओ, हाइट पर जाओ, तो इसकी जो डेंसिटी है एयर की, वो एयर, आप कैसा भी कह सकते हैं कि एयर का जो प्रेशर है वो कम होगा। द क्लाइंबर्स, जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पर्वतारोही होते हैं, जो क्लाइंबिंग करते हैं, दे एक्सपीरियंस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। अब क्या होगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एयर की डेंसिटी कम हो रही है, मतलब एयर की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, और इसी की वजह से जो माउंटेनियर्स होते हैं तो वो जब ऊपर जाएंगे तो उनको क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और कमी होने की वजह से दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स। तो बहुत ज़्यादा हाइट पर अगर वो जा रहे हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट अगर वो क्लाइंब कर रहे हैं, माउंट कांचनजंगा अगर क्लाइंब कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, और कम हो जाने की वजह से उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर्स ले जाने पड़ेंगे ताकि वो प्रॉपरली ब्रीथ, क्योंकि वहाँ पर गैस का जो लेवल है वो थोड़ा कम है, नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन वहाँ पर उसका लेवल क्या हो गया है, कम हो गया है, क्योंकि डेंसिटी कम हो गई है। तो जितनी भी गैस प्रेजेंट है वो मोस्टली फर्स्ट टू सेकेंड लेयर में ही कॉन्सेंट्रेटेड है, फर्स्ट में ही मैक्सिमम 99% कॉन्सेंट्रेटेड है, थोड़ी बहुत सेकेंड स्ट्रेटोस्फीयर में। You can see here in this diagram that this mountaineer is carrying a oxygen cylinder on its back. क्यों? क्योंकि उसे कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो जाए, और इसी वजह से क्या होता है कि एयर का जो प्रेशर होता है वो माउंटेन्स पर या हाइट्स पर या ऑल्टीट्यूड्स पर कम हो जाता है। अब जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर का जो प्रेशर है वो तो कंप्लीट बना हुआ रहता है, और वो बाहर के प्रेशर से बॉडी के अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो गया, और इसी वजह से कई बार माउंटेन पर जाने से हमारे नाक से खून भी, है ना, और इसी वजह से हमारे नोज से ब्लीडिंग वगैरह कई। नाउ एज वी गो अप द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स। द एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ये जो लेयर ऑफ गैसेज हैं, ये अर्थ पर एक प्रेशर लगाता है, एंड दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग जगह पर ये अलग अलग प्रेशर लगाता है। सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज एक्सपीरियंस लो प्रेशर। भाई अब वो हवा है तो एक
प्रेशर वो लगा के रखती है। क्यों? क्योंकि एक हमारे अर्थ के पास एक ग्रेविटेशनल पुल है, उसी ने इस एटमॉस्फेयर को पकड़ा हुआ है और उसी की वजह से एक प्रेशर लग रहा है। अलग अलग जगह पर अलग अलग, इक्वेटर पे अलग लग रहा है, पोल्स पे अलग लग रहा है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तक नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है। एयर जो है वो कैसे मूव करती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है और इसी मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। तो व्हाट इज विंड? हम बता नहीं पाते विंड क्या है। विंड इज मूविंग एयर। एंड हाउ द एयर मूव्स, उसका मूव करने का क्या स्ट्रक्चर है, उसका क्या मैकेनिज्म है? वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा मूव करती है। और इसी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट की वजह से हमें अलग अलग टाइप ऑफ विंड्स मिलते हैं, हमें अलग अलग सीजन्स मिलते हैं। सीजन्स तो खैर हमें रेवोल्यूशन से मिलते हैं, लेकिन इसी की वजह से हमें रेनफॉल जो हमारा होता है, दिस इज इसी विंड के मूवमेंट की वजह से हमें मिलते हैं। नाउ वी हैव सीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, और इन तीनों के ही इंटरसेक्शन से या इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है बायोस्फीयर, विच इज द डोमेन ऑफ लाइफ वेयर द लाइफ एग्जिस्ट। द बायोस्फीयर, इट इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर. It is in this zone that life that is unique to this planet exists. तो यहीं पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहाँ पर हमें ये तीनों, एटमॉस्फेयर भी है, लिथोस्फीयर लैंड पार्ट भी है, हाइड्रोस्फीयर वाटर पार्ट भी है। तो आप देखो यहाँ पर अलग अलग लाइफ फॉर्म्स आपको दिखाई देंगे। एक्वेटिक लाइफ है, एरियल लाइफ है, लैंड लाइफ है। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर में बी डिवाइडेड इनटू, जो बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला द प्लांट किंगडम में, इसमें सारे प्लांट्स आ जाएंगे, एंड द एनिमल किंगडम में, इसमें सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। The three domains of earth, they interact with each other and affect each other in some way or the other. अब आपको पता है कि ये जो लैंड पार्ट है, जो वाटर पार्ट है और जो एयर पार्ट है, ये आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं। ये एक दूसरे, इन्हीं के आपस के इंटरेक्शन से हम अलग अलग फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना देखते हैं। Talking about cutting of forest for fulfilling our needs of wood or clearing the land for agriculture may need to fast removal of soil from slope. से बात ऐसा कर रहे हैं कि अगर हमने क्या किया कि अगर हम अपने फॉरेस्ट को कट करने लगेंगे, लकड़ी की हमें ज़रूरत रहती है फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क, फॉर डेवलपमेंट वर्क, फॉर फर्नीचर वर्क, अगर हमने फॉरेस्ट को कट किया, और दूसरा हमें एग्रीकल्चर करने के लिए प्लेन लैंड चाहिए, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट को कट करते हैं, ताकि हम उसे, जो फॉरेस्ट वाला एरिया है उसे हम क्लियर करके एक प्लेन लैंड मिले जहां हम एग्रीकल्चर कर। अगर हमने ऐसा किया तो ऐसा करने की वजह से प्लांट्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। क्या होती है? वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं। और अगर हमने सारे के सारे प्लांट्स को कट कर दिया फॉर आवर वेरियस नीड्स, तो क्या होगा, जो हमारी सॉइल होगी वो तेज़ी से बह जाएगी, या तो हवा से बह जाएगी या पानी से बह जाएगी। और इस हवा और पानी से बह जाने को, इसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। दिस इज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन हम किस चीज से रोक सकते हैं? बाय स्टॉपिंग ऑफ द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांटिंग मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रीज को लगाएं, हम फॉरेस्टेशन करें और हम डिफॉरेस्टेशन को रोकें। नेक्स्ट, अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स। आप जानते हैं अर्थक्वेक आने से अर्थ की सरफेस जो होती है वो चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर कुड बी अ सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी। क्या हो सकता है कि अगर बड़ा अर्थक्वेक आएगा तो एक बहुत बड़ा लैंड का जो पीस है वो डूब सकता है, जैसा अभी सुनामी के केस में हुआ था। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। अंडमान निकोबार का कुछ पार्ट पानी के अंदर डूब गया। तो ये नेचुरल कैलामिटी से इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। नाउ, डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। ये बताया जा रहा है कि अगर वेस्ट मटेरियल को आप पानी में, लेक्स में डाल दें, रिवर्स में डाल दें, तो वो पानी फिर ह्यूमन यूज़ के लायक तो रह नहीं जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। उसमें अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं, जो आज हो भी रहा है। वाटर पोल्यूशन की बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम चल रही है। इसके अलावा आप अपने लिए तो वो पानी ख़राब कर ही रहे हैं, वहाँ जो एक्वेटिक लाइफ है, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसको भी आप ख़राब कर रहे हैं। जो फिशेज़ हैं वहाँ पर, जो प्लांट्स हैं वहाँ पर, जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनकी भी लाइफ ख़राब कर रहे हैं।
अदर देन दिस इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स, दे ऑल्सो पॉल्यूट द एयर। तो हम लैंड भी खराब कर रहे हैं, हम वाटर भी खराब कर रहे हैं, हम एयर भी खराब कर रहे हैं। इंडस्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, पावर प्लांट से बिजली हम बना रहे हैं, उससे जो हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, हमारी व्हीकल से जो पॉल्यूशन हो रहा है, इन सभी से एयर पॉल्यूशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमने डिस्कस किया कि हमारे प्लैनेट को गर्म रखने का काम करता है, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया हमारे एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा हो गया तो वो ज़्यादा सनलाइट ट्रैप करेगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ज़्यादा हीट ट्रैप करेगा, ज़्यादा हीट ट्रैप करेगा तो हमारा जो ओवरऑल जो हमारा अर्थ है वो गर्म हो जाएगा। हमारे जितने भी आइस वाले एरियाज़ हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो सारे क्या होंगे, मेल्ट होने लगेंगे। इसी को हमने ग्लोबल वार्मिंग कहा है कि हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा गर्म करेगा प्लैनेट को। दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। Now there is a need to limit the use of resources of Earth to maintain the balance of nature between the domain of lithosphere, atmosphere and hydrosphere। तो यहाँ पर बैलेंस बनाने की बात हो रही है कि यूज तो हमें करना है, उसके बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट वी शुड ऑल्सो ट्राई टू मेंटेन इट। उसके बीच में एक बैलेंस बना के रखना जरूरी है, नहीं तो आगे सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो जाएगी।